Good evening, friends. Sorry for delayed start by 8 minutes. We are waiting for some latecomers, but now almost all joinees are already arrived, all attendees. It's my proud privilege to introduce this session, relief measure in the amidst COVID of 2019. Hope all you are safe at home and taking the benefit of this lockdown time in the improving your skills. Let me introduce our today's speaker, Mr. Vedant Parikh. He is a practicing chartered accountant from a firm based at Ahmedabad, Gujarat. He is a also qualified certificate course offered by ICI of FAFD, Forensic Accounting and Fraud Detection and Concurrent Audit of Banks. He is also an active member and a part of various committee at Ahmedabad branch of WRC of ICI. He has expertise in the field of audit, assurance, specializing in the bank audits. With this brief introduction, we would like to start the session. Vedant bhai, please take the charge of the session and continue for next 1.5 hours. Thank you, Vedant bhai. Thank you so much, Virag. Thank you so much. So, good evening to my fellow professionals. Firstly, I hope every one of you who are watching this webinar live are safe, fit, and at your respective homes. I, Vedant Parikh, is going to take you all through a summarized session on what all statutory relaxations has been provided by the government for ease of doing business by way of either relaxations or relief under various laws. The session would be, I suppose, more of narrative and less of explanatory. The reason being, we are going to discuss about what are the various extension in the due dates or what are the reliefs. So what I suppose is it will be more of narrative that I'll be describing that this is the relaxation provided under this law and these are the reliefs which are provided. So friends, before we jump to the reliefs, let us understand why this relief has been provided. So the topic for today's session is relief measures amidst COVID-19. That what are the statutory updates in view of COVID-19 outbreak? Basically, if we see a broad view about the COVID-19, it emerged from China in late 2019, which was later on declared as a pandemic by WHO considering its global impact on COVID-19. If we see it has impacted at a global level, various strategies has been adopted by developed as well as developing nations. When we are talking about COVID-19 at a global level, I'd like to picturize a specific strategies and what is the view of India under that pandemic. The proactive adoption measures has been taken by India by way of Janta curfew and lockdown, and currently we are under the lockdown 2 phase, which has been extended up to 3rd of May. I hope we all will in a positive manner support our PM's request to stay at home and stay safe. The second measure, if we discuss, that is providing assistance through Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, where a large quantum of money has been provided by government for the relief of poor sector of our economy, where daily workers and the contractual laborers who are facing the crisis with related to day-to-day needs and the food, the basic criteria. The third, if we see, that is what the best our Pradhan Mantri has done is uniting all the states and the citizens to fight against the pandemic. And the last, that the government on itself has provided a bundle of reliefs for the welfare of economy and business at large. So my dear friends, today's topic that will be covering on this fourth point, that is what are the reliefs for the welfare of economy and the business at large. I hope everyone is able to see the presentation. If anyone has the questions during the session, please post it in the question section, which will be dealt at the end of the session. So the basic introduction where we'll be covering is the Union Minister of Finance and Corporate Affairs has announced various important relief under the COVID-19 outbreak, especially with regard to the statutory and the regulatory compliance matters, जो कि majorly dealt करेंगे with regard to the common and the hot favorite topic of India, which is with regard to goods and service tax, customs, central excise, corporate affairs, the upcoming and the new era, which is insolvency and bankruptcy code, the
emerging and the need of time, the banking sector and the commerce. What I have tried to cover in today's content is with regard to these 5 areas. Firstly, from direct taxes, the relaxation, then from indirect taxes, corporate and allied laws. Fourthly, financial reliefs for the class of sector of the country which are not directly dealing into business but may have some personal interest as far as these crises are going on, and the other measures which will be impacting public at large. So friends, firstly, we'll start with direct tax. As we know, direct tax is the prime tax area, which is the what we say it's an important tax which is being discussed as of now, where we are knowing that a new direct tax code is also going to come up in the near future. So currently, where direct taxes relaxations are provided, we'll cover it into 3 parts. First is with regard to relaxation in the due dates. Second being relaxation in availing the deductions which are being offered under the law, and the third which are the other relaxations. So friends, let me take you through relaxation in due dates, जिसमें सबसे पहला है ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 19 एंड 20. इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि the due date for filing the belated, not the regular timeline but the belated timeline was 31st of March 2020, जो कि अब बढ़ा के extend कर दी गई है up to 30th June 2020, where relaxation of 3 months has been provided. However, the late fee under section 234F, that is with regard to penalty for late filing, and interest under section 234A, which is related to late filing of return at the rate of 1%, and section 234B, which is with regard to interest for failure to pay your advance tax, which is beyond 90%, interest will be levied at the rate of 1%. So friends, जैसे कि हम दे सकते हैं, return can be filed up to 30th June 2020, but considering this late fee and interest provisions. Secondly, the due dates. ड्यू डेट एक्सटेंशन जो कि दिए गए अप टू 30th जून, जैसे कि एक हमने देखा कि आईटीआर में है ड्यू डेट का रिलैक्सेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, विच आर दी अदर सेक्टर्स जहां पे रिलैक्सेशन दिया गया है? तो दैट इज फर्स्ट विथ रिगार्ड टू एक्सटेंशन फॉर आधार और पान लिंकेज डेट. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री विच इज बूमिंग अप मोर टुवर्ड्स नाउ अ गुड गवर्नेंस, वेयर बाय गवर्नमेंट वांट्स कि एक पर्सन का एक आइडेंटिटी हो. तो फॉर दैट, Aadhaar card has been given a due importance. It is in the hot topic that what will be the date where Aadhaar card will be the sole identity of a person. तो उसमें बहुत सारी डेडलाइंस और एक्सटेंशंस आते हुए हमने देखे हैं. पहले बैंक में उसे लिंक करना कंपलसरी किया गया. देन इन द बजट, जैसे कि हमने देखा कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आधार बेस्ड पैन कार्ड से आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, जहां पे प्रिलिमिनरी ऑन दी वेरी फ्यू टाइम, वेरी लेस टाइम आपका पैन कार्ड नंबर जनरेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर आधार कार्ड. तो गवर्नमेंट ने ये भी ट्राई किया कि पैन और आधार दोनों को लिंक किया जाए. जैसे इन द नियर फ्यूचर विल बी एबल टू सी, जैसे कि यूएस और वहां पे एसईसी कोड रहता है, इंडिया में विल बी हैविंग एन आधार कार्ड. अ ग्लोबल डेटा ऑफ अ पर्सन विल बी प्रोवाइडेड अंडर दैट रिस्पेक्टिव वन नंबर, जो आपकी आइडेंटिटी होगी, जहां पे आपका बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके इनकम, आपकी असेट्स, एवरीथिंग विल बी फॉलोइंग अंडर वन आइडेंटिटी, दैट इज आधार कार्ड. तो उसमें भी हमने देखा कि गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एक्सटेंशन ऑफ आधार लिंकिंग विद पैन अप टू 30th जून. सेकेंड, गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिवली टेकिंग एक्शंस की जो भी पुराने ड्यूज है विथ रिगार्ड टू एनी लिटिगेशंस विच आर बीइंग फाइल्ड एंड कोर्ट केसेस जो चल रहे हैं, या तो फिर आपका ड्यू है जो इनकम टैक्स के साथ अपील किया हायर लेवल पे ड्यू है, तो उस केसेस में क्या किया गया है कि गवर्नमेंट हैज केम अप विद अ विवाद से विश्वास स्कीम अंडर डायरेक्ट टैक्स रिजाइम, जहां पे क्या है कि आप आपके पेंडिंग इनकम टैक्स रिलेटेड ड्यूज को सेटल कर सकते हो. तो वो केस की डेडलाइन थी 30th मार्च. उसमें क्या कहा गया है कि द पेमेंट एंड द डिक्लेरेशन अंडर विवाद से विश्वास स्कीम can be made at no additional 10% amount which otherwise was required to be paid if disputed tax was paid after 30th March 2020. इसमें थर्ड ये है कि एक्सटेंशन फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर्स, जो ऑर्डर अथॉरिटी लेवल पे है तो उसमें एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया है फॉर पासिंग द ऑर्डर्स एंड द इश्यूएंस ऑफ नोटिसेस बाय अथॉरिटीज अंडर वेरियस direct tax and Benami Transaction Act, which is also falling under direct tax.
जो उसमें थर्ड है, that is with regard to due date of payment of income tax. तो taxes majorly including income tax, SST, CTT जो कि कॉर्पोरेट और उनके लिए एप्लीकेबल होगा, इक्विलाइजेशन लेवी which are due for payment between 20th March to 30th June 2020 can now be paid up to 30th June and 2020. अब मेजरली जो प्रॉब्लम फेस होता है, अभी जो कंफ्यूजन है which we receive call from our clients as well, और जो कि बेसिक डाउट चल रहा है कि whether there is any deadline or extension has been provided for the payment of TDS. So no, as we all know that for the purpose of for the month of March, 31st March, the deadline for payment of tax is 30th of April. उसमें कोई relaxation नहीं है, so that date remains the same. Now उसके अलावा there is TCS provision also. तो उसमें अगर आप रेफर करें लॉ में, तो there is no date for TCS specifically for 30th April. So in case of TCS, the due date will be 7th of April only. Moving ahead, friends. Relaxations which are being provided for availing the deductions. तो उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि many people take the advantage of under section 54, various series is there. तो उसमें कैपिटल गेन के अंडर फॉल होती है वो सीरीज, टू सेव द टैक्स. तो अंडर दैट द रिलैक्सेशन हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द डेट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन और परचेज फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट और डिडक्शन in respect of capital gain under section 54 and 54 GB of the Income Tax Act has also been extended from the year end to 30th June 2020. So here also 3 months relaxation has been provided. अब जब हम SEZ की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक सेक्टर रीजनल बनाया गया है, उसमें ऑल्सो देयर इज अ प्रोविजन दैट SEZs which has received necessary approval by this 31st of March 2020, तो उनके लिए बिजनेस कब कमेंस करना उसका भी प्रोविजन है टू क्लेम वेरियस डिडक्शंस. तो उसमें द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन फॉर क्लेमिंग द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA of the Income Tax Act has also been extended to 30th of June 2020. The third, being benefits. Yes, friends, this is a very crucial and the prime area which has been proposed at the year end in the awareness and outbreak of COVID-19, that is contribution to PM CARES Fund. Government has created a PM CARES Fund जो कि उन्होंने ATG के अंदर डिडक्शन के अंदर रिलीफ के लिए प्रोवाइड किया गया है. So what does it say? For providing relief to citizen affected from COVID-19, a special fund, that is Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund, has been set up. ये तो हम सबको पता होगा because aggressive marketing is going on that major business and the individuals contribute to their maximum level to this PM CARES Fund. तो उसमें ये दिया गया है कि कंट्रीब्यूशन मेड अप टू 30th of June 2020 shall be eligible for 100% deduction under section 80G of the act with no limit of deduction. Importance has to be given here, no ceiling or no limit has been set कि इतना proportion आपने पेमेंट किया तो इतना एलिजिबल होगा और इतना नहीं होगा. So no limit has been set up for deduction, but that should consider the limit of 10% of adjusted gross total taxable income. मेरी on behalf of government, आप सबसे भी जो people who are watching this video through webinar, I request you all to contribute even small amount which you can contribute for this fund, which will help in turn to the people who need, who are fighting for this COVID-19. Further, this will help and boost the contribution which will be provided to PM CARES Fund, and that in turn government will use during this period of lockdown and for the welfare of the people at large. अब उसमें other relaxations, the third phase under direct tax. The first phase is with regard to interest rate, penalty and prosecution on late payment of interest. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है कि इंटरेस्ट रेट ऑन लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, या तो फिर एसटीटी जो हमने डिस्कस किया, या फिर सीटीटी जहां पे इक्विलाइजेशन लेवी विच आर ड्यू फॉर पेमेंट बिटवीन 20th March 2020, वो एक्सटेंड हो गया 30th June 2020 जो हमने डिस्कस किया. बट इफ दैट इज पेड अप टू 30th June
2020 तो इंटरेस्ट रेट में रिलैक्सेशन दिया गया है, which will be a reduced rate at the rate of 9%, which falls to 0.75% of interest per month. तो जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होगा which may be 18%, वो अब reduced होके 9%. So this is a relief as far as interest and penalty prosecutions are concerned. Further, the late payment fees or penalties that are being waived off, friends. Secondly, the validity of nil or lower deduction certificate. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि देयर इज अ सेक्टर इन द इकोनॉमी जो फॉर एग्जांपल ऐसे ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हुए हैं जहां पे एज पर नॉर्मल इनकम टैक्स रिजाइम वहां पे टीडीएस या टैक्स उनका डिडक्ट होना है, बट एट द ईयर एंड इफ दे सी देयर ग्रॉस टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम तो वो टैक्स रिजाइम में टैक्स स्लैब में फॉल नहीं होती, तो दे हैव एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर नील और लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट. So the assessees who are holding this certificate, so their expiry is related to a financial year या assessment year. तो वहां पे भी रिलैक्सेशन दिया गया है that for assessee holding a nil or lower deduction certificate, such certificate shall remain valid till 30th of June 2020 unless a new certificate is issued. Second, अब ये बात हो गई assessees who are holding this certificate. तो व्हाट विल बी द सेकंड केस जहां पे असेसीज आर नॉट होल्डिंग सच सर्टिफिकेट, तो उनके लिए असेसमेंट ईयर 2021 में एंड 2021 के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन अंडर मॉडिफाइड प्रोसीजर एंड वो सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड, द सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड अप टू 30th June 2020. तो ये दो रिलैक्सेशन दिए गए हैं एज फार एज नील सर्टिफिकेट या लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जिनको अप्लाई होता है उनके लिए. अदर सेगमेंट मेजरली जो हम जानते हैं कॉमनली यूज्ड विच इज 15G एंड 15H, फ्रेंड्स. यस, तो उसमें भी इन दी सिमिलर पैटर्न एक्सटेंशन हैज बीन प्रोवाइडेड जहां पे एक्सटेंशन फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. मैं सीनियर सिटीजन हूं और मेरा डिपॉजिट मेरी डिपॉजिट है ऑफ सर्टेन अमाउंट विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स. तो इफ आई सबमिट फॉर्म 15G एंड H तो उसके ऊपर टीडीएक्स के इम्प्लीकेशंस नहीं आएंगे, करेक्ट. तो पहले 15G और H में डिफरेंस क्या है, दैट इज फॉर्म 15H इज फॉर सीनियर सिटीजंस दोज हु आर 60 इयर्स और ओल्डर, while फॉर्म 15G इज फॉर एवरीबॉडी एल्स. तो फॉर्म 15G और H है उसकी वैलिडिटी रहती है फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर एज वी कैन सी. तो वैलिडिटी जहां पे गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है, द वैलिडिटी ऑफ फॉर्म 15G एंड H which is submitted to bank or financial institutions is been extended to 30th June 2020. जो पेयर्स इसमें इसका अगर लेमन टर्म्स में अगर इंटरप्रिटेशन निकाले तो लेमन टर्म्स में इंटरप्रिटेशन इसका ऐसे होता है कि फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1st of April 2020 and up to 30th June 2020 the form 15G and H submitted for financial year 1920 will be valid proof for non deduction of TDS. इसमें एक कंप्लायंस डाला गया है पेयर के ऊपर कि द पेयर नॉट डिडक्टिंग टीडीएस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द डिटेल्स ऑफ सच पेमेंट और क्रेडिट्स फॉर द कैटर एंडिंग ऑन 30th June 2020. लास्ट भी है क्योंकि ये डिटेल्स फ्यूचर में ट्रेस करनी होगी तो उसका कंप्लायंस के लिए डिटेल्स हैज टू बी प्रोवाइडेड. So this was the relaxations and the reliefs as far as the direct tax area was concerned. Moving ahead to a very interesting and the hot topic of our country and the recent law which is GST law and the other custom and excise related act, जहां पे हम कवर करेंगे मेजरली दो एरियाज which is export related reliefs and relaxation in the due dates in GST regime. So friends, first of all as far as the export relief are concerned और हमने जैसे डिस्कस किया कि this COVID pandemic has worldwide impact involving developed nations who also are trapped under this pandemic and are suffering financial crisis, be it developed nation or be it developing nation, be it may they be fast or intact as far as their facilities are concerned. But in such a situation, it becomes very crucial for our government to help the export and import transactions of our country to provide relief measures so as to ensure that minimum loss or effect of the pandemic are there on the business sector. So if we talk about the export related benefits, so
just a minute, friends. Yeah, the Department of Commerce and Industry has given a number of relaxations or extensions on various compliance deadlines etc which are provided. अब why this release has been provided, जैसे कि हम initial of webinar से discuss कर रहे हैं, in order to give relief, this is the lines which are being stated in the circular, in order to give relief to the business and the affected individuals amidst the stress that is being caused by the novel coronavirus pandemic, the Department of Commerce, Ministry and Industry has introduced several relaxations and extensions in deadlines with regard to the compliance mandated under its scheme and the activities. तो मैंने यहाँ पे जो सर्कुलर है उसको ब्रीफली नरेट किया है दो पार्ट में. फर्स्टली दैट इज रिलेटेड टू द फैसिलिटेशन अंडर द FTP, that is Foreign Trade Policy 2015-2020, which is being issued by the DGFT, and the second being the facilitation other than the FTP. Excuse me. So the major facilitations which are being provided includes extension of FTP beyond 31st March 2020, because FTP was framed for the period of 5 years between 15 to 20. Considering this pandemic, the FTP has been further extended. Extension of obligations and period under advance authorization and EPCG authorization. एडवांस ऑथोराइजेशन रिलेटेड जो कंपनीज होती है जिनको एडवांस ऑथोराइजेशन क्लेम करने के लिए एडवांस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के क्राइटेरियाज मीट करने होते हैं, उसमें भी सर्टेन क्राइटेरियाज एंड रिलैक्सेशंस हैज बीन प्रोवाइडेड. थर्ड, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप certificate, that is also extended beyond 31st March 2020. If we see various incentives that are being offered under MEIS, that is Merchandise Export from India scheme, and SEIS, that is Service Export from India scheme, and rebate of state and central taxes levies, उसमें भी extension है, और remissions under provision of handbook of procedure भी है जो define किया गया है. इसे हम कवर करते हैं. फर्स्टली मैं आपको एक बार बता दूं, गो थ्रू करवा लूं कि क्या क्या मेजर एरियाज है जो कवर किए गए हैं. तो इसमें फैसिलिटेशन जो अदर है उसमें जैसे हमने डिस्कस किया फॉर SEZ, उसको भी स्पेसिफिकली कवर किया है. ECGC में भी क्राइटेरियाज दिए गए हैं, और वेरियस सेक्टर्स जो है जो मेजरली डेल्ट करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में, दैट इज विद रिगार्ड टू द एग्री एक्सपोर्ट्स जो हमारा प्राइम चीज है. सेकंड विद रिगार्ड टू टोबैको. थर्ड बीइंग टी बोर्ड. देन द मरीन प्रोडक्ट्स, उसमें भी रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए गए हैं. मरीन प्रोडक्ट्स उसमें भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए गए हैं, और वेरियस मेजर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं हाउ टू फैसिलिटेट द प्रेफरेंशियल एक्सपोर्ट्स. अब ये जो सर्कुलर है, आई विल जस्ट टेक यू थ्रू दिस सर्कुलर, एक व्यू रहे आपको कि व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया दैट हैज बीन प्रोवाइडेड. सो दिस इज ए सर्कुलर फ्रेंड्स जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किया है. अब इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला है FTP जो कि एक्सटेंड किया गया है बाय 1 ईयर टिल मार्च 2021. सेकेंड इज विथ रिगार्ड टू द EPCG ऑथोराइजेशन जो है, उसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस ऑथोराइजेशन अगर हम देखेंगे तो उसमें जो एक्सटेंडेड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो होता है कंपनीज का, तो विच इज फॉलिंग और एक्सपायरिंग बिटवीन 1st of February 20 to 31st July 2020, the export obligation has been extended for further 6 months from the date of its expiry. Second being wherein import validity जो है, सबसे पहला पॉइंट है वो विथ रिगार्ड टू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है. सेकंड है इज विथ रिगार्ड टू द इंपोर्ट वैलिडिटी if falling under or expiring between the same period which we discussed, that is February to July, that is also further extended for a period of 6 months. थर्ड being EPCG जो ऑथोराइजेशन है जो ब्लॉक पीरियड में फुलफिल करने होते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के अंदर, उनमें भी 6 मंथ्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है. सिमिलरली इफ वी सी, इट इज मोर ऑफ सिंपल प्लेन टर्म्स जहां पे आप सिंपली रिफर कर सकते हो. इट इज नॉट इंक्लूडिंग एनी टेक्निकल जार्गन, as it considering the time limit and the quantum of the circular, we are limiting to this points only.
this is a simple point. This will be even circulated to you, or you can note the reference of this circular, that this was posted on 11th of April 2020. It can be easily found on the PIB website as well. So friends, these were the relaxations with regard to export benefits. Now the crucial point, that is with regard to the GST. उसमें मेजरली क्या है कि GST is not a settled law in our country as of now, because what we are seeing is on day-to-day basis there are many updates. Council meeting are also occurring on so frequent basis so as to settle the needs and the havoc which is being created due to some compliance regime. But what I see on a positive note about this law is they are trying to make this entire law in a digital way, where a digital platform has been provided totally for the compliance. Various council meetings are being organized from time to time so as to cater the issues which are being raised and to addressed in a proper way so that the law gets settled. The primary and the basic havoc which is created due to this filing of these returns, उसमें गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 months, that is for the month of March, April and May. Basically 2 returns are being filed in a normal scenario, which is return GSTR 3B and GSTR 1. The government says that the due dates of filing of return, that is GSTR 3B, from the period March 20 to May 20, as we all are aware, being professional, that there are 3 turnover criteria which are being prescribed. That is, first being up to 1.5 crore, second from 1.5 crore to 5 crore, and below above 5 crores. So if we see कि यहाँ पे अगर मैं असेसी हूँ, मेरा असेसी हूँ या तो फिर GST एलिजिबल वेंडर हूँ या तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो इफ माय टर्नओवर इज अप टू 1.5 crore and if I am supposed to file my 3B for the month of March, the deadlines is been provided till 30th of July. So friends, यहाँ पे जो डेडलाइन दी गई है मैं आपको अगर दिखाऊं, this first table is with regard to GSTR 3B, the second table is with respect to GSTR 1. So let me tell you friends, इसमें जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है that is not कि आपकी ड्यू डेट्स एक्सटेंड हो गई है, इट इज अ रिलीफ विच हैज बीन प्रोवाइडेड कि आप ये डेट्स तक कंप्लाई कर सकते हो. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो लेट अस अंडरस्टैंड. अप टू 1 crore टर्नओवर है मेरा, तो दिस आर द रिस्पेक्टिव डेट्स. नीचे जो ग्रे एरिया में इंडिकेट की है मैंने डेट्स, दैट ग्रे कलर में इंडिकेट की है रेट्स, दैट इज नॉर्मल सिनेरियो लिया है मैंने. दैट कैन बी डिफर, दैट कैन डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड एज पर योर टर्नओवर. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो डेट्स प्रिस्क्राइब की है 3rd of July, 6th of July, 12th of July, सो ऑल दिस 9 डेट्स इफ यू आर फॉलोइंग अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज ये प्रोवाइड की है. बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो अप टू 5 crore अगर मेरा टर्नओवर है तो इंटरेस्ट लेवी इज नील. बट इफ माय टर्नओवर इज अबव 5 crores देन माय इंटरेस्ट लेवी इज एट द रेट ऑफ 9%. दैट इज इन द केस ऑफ GSTR 3B, नॉट इन द केस ऑफ GSTR 1. ये क्यों किया गया इस हम एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे. अब समझना यहाँ पे ये जरूरी है कि जो डेट्स प्रोवाइड की गई है रिलैक्स डेट्स, तो बी इट इन एनी रीजन और बी इट फॉलिंग अंडर एनी टर्नओवर, अगर आपकी डेट 20, 22, 24 एज पर रिस्पेक्टिव रीजन है, दो ये सेंट्रली डेट्स डिफाइन की गई है, यू आर फॉलिंग अंडर एनी रीजन, आपको यही डेट्स अप्लाई होगी फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग ऑफ दिस रिस्पेक्टिव रिटर्न्स. Mind well friends, this is for the purpose of filing of return from the month, for the month of March, for the month of April and for the month of May. Correct. So इसे जो 9% वाला है उसे कैलकुलेट कैसे करना है एंड व्हाट इज द इन डेप्थ एनालिसिस, वो हम लेटर ऑन सेकंड स्लाइड में कवर करते हैं. टिल दैट टाइम विल कवर द पॉइंट्स व्हिच आर देयर ऑन दिस स्लाइड. द ड्यू डेट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. तो यहाँ पे जीएसटी रिजाइम जो गवर्नमेंट हैज गिवन ऑप्शंस टू द टैक्स पेयर्स to avail the composition scheme before the end of last month of the financial year, which is 31st March 2020. तो considering this pandemic that is being extended for 3 months. तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, बीट डायरेक्ट टैक्स बीट इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट ने आपको इन जनरल 3 महीने का टाइम दिया है टू कंप्लाई विद दिस नॉर्म्स. सेकेंड, उसी में फर्दर ड्यू डेट फॉर कंपोजिट डीलर्स.
So dealers last date for making payment for the quarter ended 4, that is fourth quarter from January to March in the CMP 08 is extended from 18th April to 7th of July. Again an extension. And filing of return in GSTR 4 जो आपका है वो भी extend हो गया है from 30th of April to 15th of July. हमने जैसे डिस्कस किया in the direct tax, similarly in the indirect tax we have सबका विश्वास scheme friends. तो this is also in the similar fashion जो outstanding cases है. Government is very cruel friends. As we all know government is very clear, उनको जो पुराने dues है by way of which it can be settled so that less harassment हो businessmen को in conducting their business, in monitoring their compliances, considering various dates which are being appointed in the court of law. तो to cut short that government is coming up with regular options, तो जिसके अंदर is a similar scheme of सबका विश्वास scheme, जिसके अंदर प्रोवाइड किया गया है कि एनी पर्सन हु हैज अवेल्ड सबका विश्वास स्कीम एंड हैव टू पे देयर ड्यूटी ड्यूरिंग 20th of March to 29th of June can now pay up to 30th of June 2020, a major relaxation which is with no interest. Friends, ये सारे रिलैक्सेशन देख के आई एम वेरी श्योर दैट आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स टू हेल्प अस, टू हेल्प द बिजनेसमैन एट लार्ज, कि जहां पे भी आपका कंप्लायंस है, बी रेस्ट एश्योर्ड, बी डोंट वरी अबाउट योर बिजनेस, स्टे सेफ. मूविंग अहेड, जो मैं आपको बता रहा था विथ रिगार्ड टू इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम वो 9% वाला कंसीडर करेंगे, तो गवर्नमेंट considering the indirect tax regime has came up with an important circular. I request you all to note down this circular reference because it is very crucial to solve your ground level queries which you will face while considering this. अभी तो क्या है, हम extension और what are the dates जो discuss कर रहे हैं, but at the ground level when you as a professional or when the corporate employees will be working at their end, it will be very crucial जहां पे calculation करते वक्त there will be certain confusion how to calculate for which month it is to be considered. So वो clarity आए और ambiguity ना रहे और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, उसके लिए एक कॉमन सर्कुलर गवर्नमेंट ने इश्यू किया है विच इज सर्कुलर नंबर 136/06/2020 GST dated 3rd of April 2020. So what does this circular say? Various issues relating to the notifications issued under the measures announced by the government, that is Central Board of Indirect Taxes and Customs, for providing relief to the taxpayers in the view of spread of novel coronavirus has been examined. In order to ensure, see here friends, uniformity, ambiguity ना रहे और across all users वो same protocol में follow हो, same method में follow हो, उसके लिए in the implementation of the provisions of the law across the field formation, the board in exercise of its power conferred under section 168(1) of CGST Act has clarified each of the issues under this circular. So let me take you all to that circular before discussing this illustration. See friends, basically this circular is very clear. Government ने बताया कि government has issued following notifications in order to provide relief to taxpayers. Point number 2, जहां पे हम देखेंगे from point number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 circulars has been provided, which is circular number 30, notification number 30, 31, 32, 33, 34 and 35, where various relaxations has been provided, जहां पे government ने कहा in order to ensure uniformity in the implementation of this act we are coming up with these clarifications, जहां पे very simplified format it has been, government has tried to address various issues जो जनरल प्लेटफॉर्म पे आते हैं इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज इश्यू in the question format and clarification in the answer format has been provided. It's very nicely drafted. You can go through this circular जहां पे तकरीबन 11 questions जो cater करेंगे आपके basic level questions, be it return कैसे फाइल करना है, be it what are the rates, how to calculate, be it what are the dates,
सो लेट मी टेक यू फॉर द, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने ऊपर डिस्कस किया विथ रिगार्ड टू 9%. हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द मंथ ऑफ February, March and April 2020 for a registered person whose aggregate turnover in preceding financial above is 5 crore. The rate of interest has been notified, जैसे हमने डिस्कस किया कि, और जो सर्कुलर कहता है, तो प्लीज be attentive and understand this point, friends. It is a very nice example and very useful also. So this paragraph says that rate of interest has been notified. The rate of interest has been notified as nil for first 15 days from the due date and 9% per annum thereafter. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आप जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम द ड्यू डेट, तो विद इन उसके 15 डेज पे करते हो, एंड योर असेसी हुज टर्नओवर इज अबव 5 करोड़, तो अप टू 15 डेज अगर आपने पेमेंट कर दिया तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट लेवी. बट इफ यू आर एक्सीडिंग दैट 15 डेज, तो देयर विल बी लेवी ऑफ 9% फॉर द सेड पीरियड. यहाँ पे लिखा गया फॉर द सेड मंथ. तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ एन एग्जांपल. तो हम यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर इंटरेस्ट फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च. करेक्ट फ्रेंड्स? तो जहां पे हम ले रहे हैं मे बी इलस्ट्रेटेड, चलो अब लेते हैं फॉर द एग्जांपल, हम ले रहे हैं 50% मार्च का 2020. फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, मैं असेसी हूं. फ्रेंड्स, ये एग्जांपल में जाने से पहले आप सब इतना क्लियर हो जाए कि ये इलस्ट्रेशन उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जो असेसी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है. अगर मैं ऐसा असेसी हूं जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर वेव्ड. ओके, तो मूविंग अहेड, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है मार्च 2020 में ले रहा हूं. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस, ड्यू डेट मार्च मंथ का मैंने GSTR 3B जो था वो फाइल किया मैंने 2 मई 2020. तो नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले क्या हो गया? 11 डेज. करेक्ट? फ्रॉम द ड्यू डेट. ड्यू डेट कौन सी होगी? 20th May 2020. तो यहाँ पे 11 डेज हो गया. तो व्हाट डज दिस एज पर दिस सर्कुलर, वेदर द कंडीशन फॉर रिड्यूस इंटरेस्ट इज फुलफिल्ड? द आंसर इज यस. तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? जीरो इंटरेस्ट. नो. रीजन बीइंग क्योंकि आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया है. सेकेंड केस फ्रेंड्स, अगर मैं 20th May को फाइल कर रहा हूं मेरा GSTR 3B, तो मेरी ड्यू डेट से आई एम ड्यू डेट जो है 20th April, बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन ऑफ दिस डेज में यूजफुल रहे. तो नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले इज 30 डेज. तो क्या मैंने कंडीशन ऑफ रिड्यूस इंटरेस्ट फुलफिल की? आंसर इज यस. पर क्या मेरा इंटरेस्ट लगेगा? तो आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज आपने 15 दिन का एक्सटेंशन क्रॉस कर दिया है. तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या, हमने जो सर्कुलर पढ़ा इससे पहले, यहाँ पे क्या था, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि जो 9% है विल बी ऑन द पीरियड देयर आफ्टर ऑफ द सेड मंथ्स. तो इस केस में 30 डेज जो है वो 15 डेज से बियॉन्ड 15 डेज ज्यादा हुए. तो फर्स्ट 15 डेज में जीरो इंटरेस्ट और 9% इंटरेस्ट जो लगेगा वो रिमेनिंग 15 डेज के लिए लगेगा. अगर आपको ये एग्जांपल क्लियरली समझ आ गया है तो लेट्स गो टू थर्ड एग्जांपल, जहां पे 20th जून का जो मैंने है 3B फाइल किया, वहां पे नंबर ऑफ डेज डिले कितना हो गया? 61 डेज. तो क्या मैंने रिड्यूस्ड इंटरेस्ट लायबिलिटी फुलफिल की, कंडीशन फुलफिल की? आंसर इज यस. तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा? 61 डेज माइनस 15 डेज. तो 15 डेज का जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा. इंटरेस्ट विल बी लेविड ऑन 46 डेज. नेक्स्ट केस, अब मैं आपको ये बारीकाई से केस क्यों समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा आने वाले केसेस में. नेक्स्ट केस, अगर मैंने 24 जून को फाइल किया मेरा ये रिटर्न, तो मेरा नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले हो गया 65 डेज, जहां पे कंडीशन ऑफ रिड्यूस लायबिलिटी फुलफिल तो हो रही है, बट वहां पे भी इन द सिमिलर सिनेरियो 15 दिन का जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा. रिमेनिंग 50 डेज इंटरेस्ट विल बी लेविड. नाउ कम्स द क्रूशियल पॉइंट फ्रेंड्स. जो लास्ट केस है वहां पे मैंने 3B फाइल किया बाय 30th June 2020, जहां पे डिले इज फॉर 71 डेज. क्या मैंने जो कंडीशन है हमारी फॉर रिड्यूस्ड इंटरेस्ट फुलफिल की? आंसर इज नो. तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के लिए ना मुझे 15 दिन देखने हैं
ना मुझे 9% कंसीडर करना है, बिकॉज इट इज नॉट फुलफिलिंग माय कंडीशन। तो ये नॉर्मल केस हो गया, और यहाँ पे इंटरेस्ट जो नॉर्मल केसेस में होता है विच इज 18%, वो ही लेवी होगा फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 71 days। आई होप दैट इज क्लियर। So this was the changes with regard to the indirect tax laws. Moving ahead, that is with regard to corporate and allied laws. ये जो हमने जो दो केसेस डिस्कस किए, वेट इज विथ रिगार्ड टू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उसको प्रिलिमिनरी कंसीडर करने का रीजन यही था कि दैट इज बीइंग अप्लाइड, relevant, required, and to be updated. Reason being that caters a large applicable assessees or registered persons at large. अब जो हम डिस्कस करने वाले अंडर दिस थर्ड फेज विच इज विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉस, दिस विल बी स्ट्रिक्टली एंड स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशंस फॉलिंग अंडर द रूफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे दो पार्ट में, जो कंप्लायंसेस में रिलैक्सेशन लाए गए हैं वो, और अदर रिलैक्सेशंस। सबसे पहले रिलैक्सेशन इन कंप्लायंसेस फ्रेंड्स। Many of you will be the auditors of listed companies, or if any of the employees are there from the listed companies, so there is a great relief, as you are aware that कि year end में जब हमें LR submit करना होता है which is limited review, तो उसमें compliances में ये है कि there is a deadline of 60 days or 45 days at the end of the quarter। तो आइए जानते हैं कि क्या रिलैक्सेशन दिया है एज फार एज दी सेबी कंप्लायंसेस आर कंसर्न। तो टेम्पररी रिलैक्सेशंस फ्रॉम सर्टेन कंप्लायंस स्टिपुलेशन स्पेसिफाइड अंडर सेबी, एज वी ऑल आर अवेयर कि सेबी के जो गाइडलाइंस है फॉर लिस्टेड कंपनीज आर फॉलिंग अंडर LODR which stands for listing obligation and disclosure requirements, जो कि रेगुलेशन है इन इटसेल्फ ऑफ 2015, जो कि उन्होंने अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू द क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वार्टरली जो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स था, दिस विल बी यूजफुल टू कंप्लायंस। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरीज है, अगर आप सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में है तो ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो क्वार्टर एंड पे आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स था, या तो फिर क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न जो थी अंडर रेगुलेशन बी 13(3) और रेगुलेशन 31, तो वहां पे आपको 3 वीक्स का रिलैक्सेशन टाइम प्रोवाइड किया गया है। रिलैक्सेशन रेगुलेशन अंडर 7(3) भी जो है वो है सर्टिफिकेट जो देना होता है शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी का, और उसके अलावा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो आपका रिपोर्ट है अंडर रेगुलेशन 27B, उसमें कंप्लायंस का 1 मंथ दिया गया है। अब वेरी क्रूशियल, जैसे कि मैंने बताया लिस्टेड कंपनीज के लिए, तो रेगुलेशन 33 जो है वो फॉर फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स इज रिलैक्स्ड फॉर कंप्लायंस फॉर 45 days फ्रेंड्स। तो दिस इज अ ग्रेट रिलीफ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वो दिस रिलैक्सेशंस कैन बी मीट, यहाँ पे 3 मंथ से कम महीने का पीरियड दिया गया है कंसीडरिंग दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड दी कॉर्पोरेट कल्चर, बिकॉज मेजरली हम अभी देख रहे हैं कि दो लॉकडाउन है बट मेनी कॉर्पोरेट्स आर वर्किंग फ्रॉम देयर होम, so I don't think it will be very difficult for them to comply with these norms. Considering that fact, the relaxations has been not been given for an elongated period but a limited period, but I suppose that this period will be sufficient enough to meet with the compliance. Second, वेरी नाइस, एज हमने डिस्कस किया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में विथ रिगार्ड टू सबका विश्वास स्कीम एंड विवाद से विश्वास स्कीम, तो इन दी सिमिलर फैशन गवर्नमेंट has came up with 2 new schemes in the similar fashion, जहां पे not exactly in the similar way but yes a relief to the corporates, जहां पे उन्होंने 2 schemes issue की। फर्स्ट is with regard to the companies fresh start scheme 2020 and second that is with regard to LLP settlement scheme 2020। तो हम ये दोनों को डिटेल में देखेंगे। दो आई हैव प्रिपेयर्ड अ समराइज्ड डॉक्यूमेंट फॉर द सेम, उसे हम खाली गो थ्रू करेंगे इन ब्रीफ। ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या नरेट करता है कि डॉक्यूमेंट ड्यू फॉर फाइलिंग एज फार एज कंपनी फ्रेश टीम इज कंसर्न, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि डॉक्यूमेंट्स जो भी ड्यू थे फाइलिंग के लिए टिल 31 March 2020 अंडर कंपनीज एक्ट आर नाउ can and not filed can now be filed up to 30th September 2020 friends।
और लेट फीस जो होगी वो केसेस में इज कंप्लीटली वेव्ड एंड फुल इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इज ग्रांटेड. सॉरी. सेकेंड, इन दी सिमिलर फैशन लिमिटेड लायबिलिटी स्कीम, तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यूनिक वे ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो भी कंप्लायंस पेंडिंग है कॉर्पोरेट्स के, इट्स अ वेलकम चेंज. इट कैन बी सीन एज अ फर्स्ट मोर एडवांटेज. जहां पे आप कंपनीज हो, आपके कोई कंप्लायंसेस बाकी है तो 30 सितंबर 2020 तक का आपके पास टाइम है. अर्ज योर कंपनी सेक्रेटरीज, your compliance department to meet all the requirements if they are pending, and stay updated and file all your returns till this period so that you can be saved from the late penalties if in case you have missed any of your compliances. So let me take you through that document as well. So what is the background? What does it say? Background of the scheme is the company fresh start scheme जो है 2020, वो एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे रही है टू कंपनीज टू एनेबल देम टू कंप्लीट देयर पेंडिंग कंप्लायंसेस बाय फाइलिंग देयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन MCA 21. तो ये तो बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज वेरी क्लियर कि अगर आप कंपनी हो, आपके कोई पेंडिंग कंप्लायंसेस है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वंस इन लाइफ टाइम, प्लीज कंप्लाई एंड फॉलो दिस स्कीम. अगर आपको कंप्लाई करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस स्कीम. It is also very drafted in a layman and normal, using normal terms, so no technical jargons, no ambiguity in reading. It is plainly and simply drafted, so you can go through it. Also, I'll provide you my details at the end. If you want this document, I will be happy to share it with you. So tenure of this scheme, जैसे मैंने बताया कि 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक है. अब यहाँ पे जो है बेनिफिट्स क्या दिए गए, हम बेनिफिट्स को देखेंगे खाली, बाकी का हम अभी स्किप करेंगे टेम्पररी. तो बेनिफिट अगर हम देखें तो इट इज अ वन टाइम वेवर ऑफ एडिशनल फाइलिंग फीस फॉर डिलेड फाइलिंग्स. हाउएवर नॉर्मल फीस जो रहेगी वो तो आपको लेवी रहेगी. ये रिलैक्सेशन ये दिखाता है कि जो लेट पेमेंट अगर आपने किया होता उसके ऊपर जो चार्जेस लगे होते वो हमने वेव किए हैं, बट नॉर्मल फीस तो आपको भरनी ही है. Second, an immunity certificate in respect of documents filed under this scheme shall be issued which grants the immunity from penalty and prosecution जो related है delay in associated with filing of belated documents. So these are the two advantage of this scheme. There are other benefits of inactive companies. फिर designated authority है या डिफॉल्टिंग कंपनी है, शेयर एप्लीकेबल, इसमें एक्सक्लूजन किन कौन को है, ये खाली एक बार ध्यान रखना है आपको कि आप कंपनी है बट आपको जाना है ये स्कीम के लिए, बट फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट कवर्ड स्पेसिफिकली बाय दिस सर्कुलर. दैट इज कंपनीज हु हैव अप्लाइड फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. कंपनीज अगेंस्ट विच एक्शन फॉर फाइनल नोटिस फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ हैज बीन ऑलरेडी इनिशिएटेड. कंपनीज हु हैज अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग डोरमेंट स्टेटस. Amalgamated companies under the scheme of arrangement of compromise. Vanishing companies. Filing of document related to increase in authorized capital आपने किया है, और filing of change related documents. तो ये स्कीम ये केसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. करेक्ट. In the similar fashion we have LLP settlement scheme. LLP settlement scheme कहता है कि any defaulting LLP is permitted to file belated document which were due for filing till 31st of August 2020 in accordance with the provisions of this scheme. ये जो रिलीफ है हम इन द लाइट ऑफ कोविड-19 तो डायरेक्टली नहीं कह सकते, बट यस, considering this COVID-19 it will have a beneficial impact, and majority of the companies will be complying with this scheme so as to clear their old dues या old compliances which are pending as on date. So tenure will be same, that is 1st April 2020 to 30th September 2020. वन टाइम वेवर और इम्यूनिटी सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड, ये जैसे हमने कंसीडर किया. अब डिफॉल्टिंग एलएलपी और डिफॉल्टिंग कंपनी जो दूसरी स्कीम में था उसकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड की है, विच स्टेट्स कि वेयर डिफॉल्टिंग एलएलपी मींस एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 which has made a default in filing of documents
on the due date specified under the LLP Act and the rules made thereunder. So circular in itself is explanatory. You can go through that. Correct. Moving back to our topic. So this was about company's fresh start scheme and LLP settlement scheme. बेसिकली माइंड में ये डाल दीजिए कि ये कंप्लायंसेस उनके लिए है जो डिफॉल्टिंग कंपनी या डिफॉल्टिंग एलएलपी है, जिन्होंने अभी तक कंप्लायंसेस नहीं किए, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टिल 30th of September 2020. लास्ट, जैसे कि हम सब जानते हैं, न्यू कारो 2020 वाज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली और वो एप्लीकेबल भी होने वाला था करंटली इन द फाइनेंशियल ईयर 1920. So that has been specifically extended and now that will be applicable from financial year 2021. ये बहुत ही क्रूशियल चेंज है फॉर दी कंपनीज. अगर आप कंपनी हो तो आपके लिए ये जो 4 चेंजेस हमने डिस्कस किए ये बहुत ही जरूरी है. इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी सेबी कंप्लायंसेस जो हमने 4 डिस्कस किए, दैट प्लस उसमें एलआर में जो 45 डेज का ग्रेस दिया गया है. इफ यू आर नॉट लिस्टेड कंपनी तो आपको एलएल इवन दो यू आर लिस्टेड एंड इंक्लूडिंग अदर प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तो आपके लिए कंपनी सेटलमेंट स्कीम है. एलएलपी हो तो एलएलपी सेटलमेंट स्कीम है. और कारो एज पर इट्स एलिजिबिलिटी नॉर्म्स आपके लिए एक रिलैक्सेशन है फॉर फर्दर 1 ईयर. इसमें कारो में बेनिफिट क्यों देखा जा रहा है कि बिकॉज दिस कारो हैज brought various changes and brought tremendous responsibility on the management of the company as well as for the auditors. तो ऐसा माना जाता था कि it will be very hue and cry at the year end how to comply with that norms, what to comply and how will we make necessary arrangements for the same. So friends, it is an opportunity for you to comply with the caro norms. जैसे कि caro आ गया है, various seminars or various sessions are being conducted on caro. तो उसमें भी डिस्कस किया गया है what are the difficulties, challenges that will be faced by management as well as the auditors. So now it's a golden opportunity for you. Assess it, go through it properly, read it thoroughly, and from the very first day after this pandemic is over, instruct your company's management, you instruct your internally that how to comply with this caro requirement so that when the reporting time comes that goes in a proper manner. As far as the other relaxations are concerned, there is a CSR contribution. जैसे कि हमने डिस्कस किया अंदर डायरेक्ट टैक्स, उसे ATG में अलाउ किया गया है एज ए डिडक्शन. सिमिलर फैशन अगर कंपनीज एक्ट MCA के अंदर आप देखो तो कंपनीज आर सर्टेन कंपनीज हु आर एलिजिबल आर रिक्वायर्ड टू मेक CSR contribution. तो an eligible CSR activity funds may be spent on COVID-19 relief on activities relating to promotion of healthcare including preventive healthcare and sanitization and disaster management. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा इसके अंदर और गवर्नमेंट का लॉजिक क्या है लाने के पीछे. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप PM केयर्स जो हमने डिस्कस किया, कॉम्बेटिंग द चैलेंजेस ऑफ इमरजेंसी ऑफ डिस्ट्रेस सिचुएशन. तो यहाँ पे MCA हैज प्रोवाइडेड अ क्लैरिफिकेशन स्टेटिंग दैट any donation or contribution made by the companies to above fund shall qualify as CSR expenditure. So that's a good news. और इसकी वजह से हम देख सकते हैं on a lighter note that Tatas, Birlas, Adanis have given a tremendous fund to this. It's given a tremendous contribution to this fund. So they will also be eligible for this huge fund falling under CSR or maybe claiming as deduction under ATG. So this is a benefit that clarification is issued and promoting and boosting companies to contribute more and more, friends. Yes. So now अब हम ऐसे एरिया को कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स जहां पे आप एम्प्लॉय हो या तो फिर आप एक इंडिविजुअल हो. हमने जो अभी तक बात की वो कॉम्प्लेक्स स्टैट्यूट रिलेटेड बातें की, जहां पे हमने डिस्कस किया डायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस है, अगर मैं कंपनी LLP हो तो व्हाट आर द रिलीफ्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड. बट अब जो हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये जो एरिया कवर करेंगे उसके अंदर आप नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल सिटीजन हो, आपके लिए क्या फाइनेंशियल रिलीफ लाया है गवर्नमेंट. तो आइए देखते हैं उसे हम 2 पार्ट में देखेंगे कि 1 इज RBI's मेजर फॉर बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स एंड FAQs ऑन मोरेटोरियम. इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल हो तो भले ही इंडिविजुअल हो आपने कोई लोन ले रखी है विच मे बी इन वेरियस नेचर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस
for the purpose of export proceeds, for the purpose of working capital, या तो मैं इंडिविजुअल हूं फॉर द पर्पज ऑफ माय हाउस लोन या पर्सनल लोन एक्सेट्रा। दो मैंने बताया कि इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, बट आरबीआई ने ये जो फ्रेमवर्क दिया है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल एट लार्ज, मेजरली इंपैक्टिंग इंडिविजुअल्स। वो मैंने क्यों बताया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। moratorium of term loans, so all lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on repayment of installment for term loans outstanding as on March 2020। दूसरा यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स दिया गया है। ये मॉरेटोरियम क्या दिया गया है वो हम डिस्कस करते हैं, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट वंस। टाइम पीरियड, टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, जहां पे बताया गया है कि टाइम पीरियड फॉर रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। ये हम एक्सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया रिलीफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां पे भी डिस्कस कर सकते थे। यहाँ पे ये कहना चाहती है गवर्नमेंट की जो रियलाइजेशन होता है रियलाइजेशन होता है और रिपेट्रिएशन होता है ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, उसमें बेसिकली आरबीआई हैज प्रोवाइडेड 9 मंथ्स पीरियड। उससे अब कंसीडरिंग दिस ग्लोबल पेंडेमिक, जैसे हमने बार बार डिस्कस किया, इट इज नॉट फॉर डोमेस्टिक रीजन ओनली, इट इज अ ग्लोबल पेंडेमिक इंपैक्टिंग ऑल द कंट्रीज। तो यहाँ पे 9 मंथ का पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मंथ्स। अब एमएसएमई, अब डिफरमेंट एमएसएमई बाद में लेते हैं, डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। तो वो कहता है कि the moratorium on deferment of payment of term loan will not lead to asset classification downgrade. A good relief. Lending institutions permitted to allow deferment of 3 months on payment of interest with respect to all such working capital facilities outstanding as on date, friends, 1st of March 2020. And deferring of interest paid on working capital will not result in asset classification downgrade. So that's a good relief. By this circular, RBI has tried to say in general terms that there is a debt liability of an individual or a company or a firm or any organization structure. So as economy at a global level, at a domestic level has been impacted, where people are there in lockdown, it's a more or less curfew scenario where all the works has been stopped apart from the essential services. So businesses are not being conducted, due to which revenues are not being generated, due to which individual or the organizations may not be in a capacity to repay their debt. Considering this, the apex body of our country, the apex financial institution, that is Reserve Bank of India, has came up with a relaxation, which is a big relief for everyone, that आपको 3 महीने का डिफरमेंट दिया जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ योर बैंक। बिकॉज why I am saying at the option of your bank, RBI ने जनरल टर्म्स में बोला कि बैंक में परमिट, importance is given bank, your bank may permit, because RBI has allowed, RBI is very clear, RBI says that your bank at their discretion can allow you कि आपका जो डेट का पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया वर्किंग कैपिटल में, या ईएमआई हो गई, या आपके लोन के ड्यूज हो गए, तो वो सब जो है आप ऐसा समझिए कि मॉरेटोरियम पीरियड मिल जाएगा आपको 3 महीने का। यहाँ पे रिपीटेडली वर्ड यूज हो रहा है मॉरेटोरियम। तो फॉर दोज हु डू नॉट नो व्हाट इज मोरेटोरियम इज अ पीरियड विच इज लाइक अ स्टैंड स्टिल क्लॉज, हमारे टर्म्स में, प्रोफेशनल टर्म्स में जैसे हम स्टैंड स्टिल क्लॉज कहते हैं, एंड फॉर लेमैन इट इज लाइक अ पॉज बटन। मॉरेटोरियम पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पे स्टैंड स्टिल हो जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर डेट। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैं, मेरी लोन है एक XYZ बैंक में विथ रिगार्ड टू 20 लाख ऑफ हाउसिंग से फॉर एग्जांपल, तो उसका ईएमआई अब ड्यू है ऑन एवरी मंथ से फॉर एग्जांपल 20,000। बाय वे ऑफ दिस सर्कुलर मेरी बैंक ने भी अलाउ किया कि मेरे पास ऑप्शन है, क्या आपको ऑप्शन लेना है 3 महीने मॉरेटोरियम लेने का। मॉरेटोरियम, आई सेड यस, मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं ऑप्शन ले रहा हूँ मॉरेटोरियम ऑप्ट करने का। तो व्हाट आई एम डूइंग बाय दैट ऑप्शन, मैंने गवर्नमेंट या तो फिर मेरे बैंक को बोला कि यस आई वांट टू ऑप्ट फॉर दिस मॉरेटोरियम पीरियड। तो मॉरेटोरियम पीरियड में ऐसा रहता है कि मार्च, अप्रैल एंड मई 3 महीने का मॉरेटोरियम मिला, तो मार्च में जो आपकी ईएमआई ड्यू थी, अप्रैल में जो आपकी ईएमआई ड्यू थी, मई में जो ईएमआई ड्यू थी, वो 3 विल बी स्किप्ड।
मतलब वो 3 रहेगी नहीं, वो 3 मंथ में ऐसा माना जाए कि वो 3 मंथ में आपकी ईएमआई ड्यू ही नहीं थी, तो उसका क्या होगा इम्पैक्ट, तो वो फर्दर डिफर की जाएगी एट द एंड। तो फॉर एग्जांपल आपके 165 इंस्टॉलमेंट्स है टोटल लोन पीरियड के, अब ये 3 बीच में स्किप हो गई तो नाउ इट विल बी 168 इंस्टॉलमेंट्स के पीरियड तक वो जाएगा, कंसीडरिंग बीच के 3 इंस्टॉलमेंट तो रहेंगे बट वो जीरो अमाउंट के रहेंगे। ये हम आगे कवर करेंगे जहां पे आरबीआई ने क्लैरिफिकेशंस और एफएक्यूज के द्वारा वेरियस एग्जांपल्स भी दिए और एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। तो बाय मोरेटोरियम आई सपोज एवरीवन इज क्लियर कि ये एक पॉज पीरियड है जहां पे आपको ईएमआई या वो कुछ होगा नहीं, स्टैंड स्टिल पीरियड कुछ भी एप्लीकेबल नहीं, नो ड्यूज नथिंग। अब एम्बिग्यूटी यहाँ पे ये है कि आरबीआई बीइंग एपेक्स बॉडी उन्होंने बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया बाय सर्कुलर कि यू मे गिव ऑप्शन। बैंक आप एफएक्यूज बैंक वेरियस बैंक्स के अलग अलग वेरियस बैंक्स हैव अडॉप्टेड वेरियस पॉलिसीज कंसीडरिंग द रीडिंग ऑफ दिस सर्कुलर। मैनी बैंक्स हैज मेड कंपलसरी कि हमारे वहां जितने भी यूजर्स या पीपल है हुज लोन आर गोइंग ऑन, उन हर एक को मैंडेटरी है फॉर मोरेटोरियम। कुछ बैंक ने ऐसा किया है कि एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन आपने अगर ऑप्ट किया तो जाएगा, किसी बैंक ने दिया ही नहीं है। So there are various examples. अब ambiguity is what is the reading, मतलब what is the benefit of this period, moratorium period, which is being given by the RBI. So ambiguity as to mandatory for all the banks to offer moratorium or it's an option for banks to offer. तो हो क्या रहा है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा आईसीआईसीआई में लोन है, एचडीएफसी में लोन है। आईसीआईसीआई में ऑप्शन था, उन्होंने दिया है मुझे, आई ऑप्टेड फॉर इट। HDFC has not given me the option. So what to do in that case? अब आरबीआई ने तो ऑप्शन दिया था, ये बैंक ने वो ऑप्शन नहीं लिया, तो मैं तो एज एन इंडिविजुअल फेस कर रहा हूँ डिफिकल्टी। सो वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन टू इट, इट्स एन एम्बिग्यूटी। मूविंग अहेड, द बेस्ट थिंग which to boost up the business is loan to MSMEs. Excuse me. The SIDBI has announced loan up to INR of 5 million, that is US dollar 71,000, to MSMEs that are manufacturing medical supplies to combat COVID-19. So that's a good relief for those MSMEs who are falling under the eligibility of those loans. Correct. तो अब मैं आपको FAQ से रन कराऊंगा, कंसीडरिंग द टाइम फ्रेम विल जस्ट गो थ्रू इट फास्ट। FAQs आरबीआई ने ये FAQs भी प्रोवाइड किए हैं फॉर दी, जैसे हमने देखा इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कि वहां पे कॉमन यूनिफॉर्मिटी तरीके से इम्प्लीमेंट हो लॉ सिमिलर फैशन, सो एज देयर नो एम्बिग्यूटी और सारे क्वेश्चंस एड्रेस्ड हो, तो उन्हें मेजर क्वेश्चंस को कंसीडर करके आरबीआई केम अप विद दिस FAQs, जिसमें सबसे पहला है फॉर एग्जांपल इज माय ईएमआई इज ड्यू, विल द पेमेंट नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम माय अकाउंट। तो जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई इज only allowed banks to allow for a moratorium. Individual banks will have to allow suspension of EMIs. Excuse me. तो यहाँ पे बताया गया है borrower will have to request the bank and show that his or her income has been impacted by the coronavirus disruption. This means that unless you have specific approval from your bank, your EMIs will strictly be deducted from your account. तो अगर आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करना है तो गो टू योर बैंक, आस्क देम that my I am suffering from financial crisis, there are certain obligations to be met for daily needs, so I may not be in a position to fulfill my debt, so I request you to consider my moratorium for the period which is being provided by the RBI. So considering that, your bank may accept your request and you may get a moratorium period for a period of 3 months. अब एक जो बेसिक सवाल जो हर एक के दिमाग में ऑफ मेजर पीपल एट लार्ज आया है कि दो बैंक आरबीआई इज मैंडेटेड कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आई एज एन इंडिविजुअल शुड आई ऑप्ट फॉर इट और नॉट? क्या ये डेफरमेंट लेने से मेरा इंटरेस्ट और लोन पेमेंट का अमाउंट बढ़ जाता है? क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? ये इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, it will consume a lot of time, at some other point of time we'll try to cover it, but from my point of view, if you are not facing any financial crisis, I request you कि आप आपके EMI ड्यूज जो है वो डिफरमेंट मॉरेटोरियम पीरियड अडॉप्ट ना करें और ड्यूली भर दे। इसका बेसिक क्वेश्चन दूसरा ये है कि इज दिस वेवर
of EMIs or a deferment of EMI. So this is not a waiver but a deferment. ये याद रखिए, गवर्नमेंट ने आपको दयादान नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ आपको रिलैक्सेशन दिया है कि 3 महीने तक आप रहिए, 3 महीने के बाद जब वो ड्यू होता है आप उसे पे करिए ऑन टाइम एज रिक्वायर्ड. So there are various other FAQs as well, but last which I want to, as I suggested, is it recommended to opt for this? If you do not have cash flow challenges, suggest you to go ahead and honor your EMIs. Else by the end of 3 months, you would have an accumulated sum of 3 months to be paid along with the interest on larger sum. Now, moving ahead to the last and the important, that is other measures. अब फ्रेंड्स, ये जो चेंजेस है वो प्रपोज किए गए हैं अदर मेजर्स, ये साइज में तो छोटे हैं बट इसकी इम्पैक्ट बहुत बड़ी है. सबसे पहला इसमें है इज विथ रिगार्ड टू इल्डा, इज विथ रिगार्ड टू इंश्योरेंस. तो यहाँ पे ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया गया है या कॉन्डोनेशन हम कह सकते हैं जो प्रोवाइड किया गया है फॉर डिले ऑफ 30 डेज प्रोवाइड परमिट किया गया है इन केस ऑफ व्हाट. तो प्रीमियम जो हम पे करते हैं ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये आपको सीधा मिल जाएगा प्रेस रिलीज जो कि 31 मार्च 2020 को प्रोवाइड की गई है उसमें. अब ये केसेस में जो मैंने एक केस कवर नहीं किया है वो है विथ रिगार्ड टू प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इसे मैं कवर मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट आई विल नरेट टू यू. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो है वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, इट्स अ वेरी बिग रिलीफ फ्रेंड्स, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे द ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, दैट इज 12% ईच, टोटलिंग टू 24% फॉर नेक्स्ट 3 months. ये भी अपने आप में गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बजट होगा to pay the EPF contribution of the employee and the employer, resulting into total 24% contribution. This is for those establishment, but government ने भी अपनी एनालिसिस प्रॉपरली की है और एलिजिबिलिटी नॉर्म इसमें भी डाला है. जो एलिजिबिलिटी नॉर्म ये कहता है दिस इज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट which have up to 100 employees, 90% of which earn below 15,000 per month and includes home, vehicle, personal, education, any loans with fixed tenures. मैंने तो अभी ये हमारे बिजनेस में देखा भी है. तो प्रोविडेंट फंड में आपके लिए एक अवेयरनेस के लिए आपको ये स्कीम में जाना है तो देयर इज अ फॉर्म 5 व्हिच हैज बीन मैंडेटेड बाय द पीएफ बॉडी. तो फॉर्म 5 अलोंग विद द ईपीआर प्रोविडेंट फंड का जो रिटर्न होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिटर्न, वो रिटर्न जब आप फाइल करो, प्लीज फ्रेंड्स नोट दिस, ये आपको आपके क्लाइंट्स या तो फिर आपके इंडिविजुअल बिजनेस में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. फॉर दोज इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पीएफ एप्लीकेबल है, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनिए. अगर आपका ये 3 महीने में पीएफ एलिजिबल होते हो, आप ये कंडीशन में फुलफिल होते हो और आपको ये गवर्नमेंट बेनिफिट मिलने वाला है, तो व्हाट एंड हाउ यू आर सपोज टू डू इट. 12% जो एम्प्लॉइज की सैलरी है जो आप काटते थे उनकी सैलरी में से, मान लो कि 100 रुपीज इज सैलरी इंक्लूडिंग पीएफ, तो आप 88 उनको देते थे, 12 रुपीज गवर्नमेंट में डिपॉजिट करते थे, उसकी जगह पे अब आपको टोटल 100 रुपीज आपके एम्प्लॉइज को दे देने हैं सबसे पहले. तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने 12 वहां दे दिए, करेक्ट. तो आपने तो दे दिए, अब क्या होगा, आपको वो रिटर्न फाइल करना है प्रोविडेंट फंड का. प्रोविडेंट फंड का आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो वहां पे आपको आपके एंड के एज एन एम्प्लॉयर 12% भी जो सबमिट करना था वो नहीं करना है. अब क्या होगा, आपकी जेब से 12 जो एम्प्लॉय को दे दिया आपने बाय वे ऑफ बैंक और कैश, तो वो तो हो गया, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए आपको रिटर्न में दिखाना होगा these are my eligible employees to claim for this benefit. Yes friends, eligible employees, mark this word as very important. eligible employees का मतलब होता है कि उसमें गाइडलाइन दी गई है कि कहा गया है कि जो जो एम्प्लॉइज आपके पेरोल पे है जिनका आप रिटर्न फाइल करते हो, उनका आपको मैंडेटरीली केवाईसी आधार लिंक्ड करवाना है. मतलब मेजर लोगों का हो गया होगा, बट फॉर दोस्त जिनका केवाईसी या आधार लिंक्ड नहीं हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मैंडेटरी कि आप वो पहले करवाओ, उसके बाद आप आपका रिटर्न फाइल करो. अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको, तो जब मैंने आपको बोला कि आपको ईपीएफ का रिटर्न तो फाइल करना है, उसके साथ एक फॉर्म 5 फाइल करना है. तो फॉर्म 5 जो है वो उसमें एक डिक्लेरेशन लेता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर स्टेटिंग दैट
कि जो भी मेरे एम्प्लॉइज है उनका केवाईसी हो गया है, आई एम फुलफिलिंग दिस कंडीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां पे ये केवाईसी वाला पॉइंट, आधार लिंकिंग वाला पॉइंट का आप डिक्लेरेशन एज एन एम्प्लॉयर देते हो। सो माय रिक्वेस्ट एंड अर्ज इज कि इफ आपके एम्प्लॉइज जिनका आप क्लेम करने वाले हो गवर्नमेंट से अंडर दिस रिलीफ, आप सबसे पहले उनका केवाईसी और आधार लिंक करवाओ। गवर्नमेंट ने उनके पोर्टल पे या बाय वे ऑफ सिंपली उनका एक एप्लीकेशन भी है जहां से सिंपली आप आधार को केवाईसी से लिंक करके प्रोसीजर कंप्लाई कर सकते हो। सो बिफोर क्लेमिंग दिस बेनिफिट, इंश्योर कि आपका केवाईसी और आधार हो गया है, आप रिटर्न फाइल करो। रिटर्न के साथ साथ आप अपना फॉर्म फाइल भी मैंडेटरीली फाइल करना। ये प्रोसीजर आपका रहेगा 3 महीने के लिए। कंसीडरिंग दैट गवर्नमेंट भी चेक करेंगे उनके रिकॉर्ड्स और आपके रिटर्न्स फाइल हुए उसके हिसाब से, देन दैट मनी विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो जिसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 24% फ्रेंड्स, 24%, जिसमें से 12% जो है आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो कि जाता जाता गवर्नमेंट में, मतलब आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट में सीधा जाएगा 12% ऑन योर बिहाफ। तो वो 12% एज एन एम्प्लॉयर आपकी जेब से नहीं गए, गवर्नमेंट ने सीधे आपके भर दिए वहां पे, करेक्ट। तो ये था विथ रिगार्ड टू पीएफ। अब आगे बढ़ते हुए, एज हमने देखा आईबीसी, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, आईबीसी इज एन वेरी अपकमिंग एंड इमर्जिंग एरिया। इट इज also a very dynamic act in itself, indulging various kind of activities, a good time opportunity for the profession at large, जहां पे various services can be rendered including insolvency professional services, forensic auditor, transactional auditor, compliance related services, valuations, be it valuation of financial assets. सो फ्रेंड्स, आईबीसी इज एन वेरी इवॉल्विंग एंड अपकमिंग एरिया, जहां पे ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर डिफॉल्ट, आईबीसी में ऐसा कहा गया है कि आप क्रेडिटर हो और आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड हैज नॉट बीन पेड ऑफ, तो आप सीधा क्लेम फाइल कर सकते हो फॉर द आईबीसी। तो वहां पे जो लिमिट थी एग्जिस्टिंग थ्रेशोल्ड ऑफ 1 लाख, इट हैज नाउ बीन रेज टू 1 crore। This may not be in the light of COVID-19, but especially I have considered this so that when we are covering these updates, ये भी आपके दिमाग में रहे। तो यहाँ पे एक लिमिट रेज कर दी गई है 1 crore तक। रीजन बीइंग क्या होता था कि 1 लाख बीइंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, छोटे से छोटे अमाउंट जिनकी क्या बोलते हैं कि ड्यू है पेमेंट, वो छोटी अमाउंट वाले भी जाके आईबीसी में फाइल कर देते थे, ड्यू टू विच द ऑपरेशंस एंड द effects and the business of the companies were getting affected. So considering the materiality limit, the limit has now been increased from 1 lakh to 1 crore। तो क्या है कि एटलीस्ट वो क्या बोलते हैं माल प्रैक्टिसेस या छोटे जो क्रेडिटर्स थे वो अब उसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और जेन्युइन जो 1 crore के ऊपर है, दो 1 lakh विल बी ऑल्सो जेन्युइन, बट 1 crore is considered to be a material amount more than the 1 lakh, correct? So that can also be followed from notification dated March 24, 2020. Then there is ESIC। ESIC contribution में ऐसा कहा गया है कि ESIC contribution for the month of February 20 and March 20 can now be filed and paid up to April 2020, April 15, 2020 and May 15, 2020 instead of March 15, 2020 and April 15, 2020 respectively। The notice is dated 16th of March 2020। Simple terms में अगर कहूँ तो one deferment in filing has been given for the month of March and April। अब जब मैं डेट की बात कर रहा था, जो मैंने बताया कि प्रोविडेंट फंड में मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, तो ऑन 15th of April itself the EPF body has came up that हमने भी extension दिया है with regard to filing of EPF return, that has been extended up to 15th of May 2020। Last but not the least and very crucial and very important, आप देखिए यहाँ पे जो भी चेंजेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, रिलैक्सेशन डिस्कस किए, अगर आपने गौर किया होता तो, और जैसे कि हम सब अभी जानते हैं, मैं ये पॉइंट पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा ग्लोबल इम्पैक्ट 2 मिनट में खाली कवर कर लूं कि इंडिया डेंसली हाईली पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना, करेक्ट। और अभी जैसे कि आप सब भी अवेयर होंगे रिगार्डिंग द स्टेटिस्टिक्स ऑफ द कोविड-19 इफेक्ट, तो हम अभी बहुत ही लोअर स्टेज में है, वी हैव नॉट रीच टू फेज 3।
जहां पे बाकी सारी कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, इटली, स्पेन, जर्मनी, उनके कंपैरिजन में हमारे वहां जो स्प्रेड है वो बहुत कम है। एंड दिस इज प्योरली एंड प्योरली ड्यू टू फोरसाइटेड विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने जो प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए टू प्रोक्योर एंड टू क्योर दिस स्प्रेड ऑफ द वायरस, उन्होंने पहले ही जनता कर्फ्यू अनाउंस किया, स्टेज मैनर में उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया। अभी भी समझिए, ही इज रिक्वेस्टिंग बाय जॉइनिंग हिज हैंड्स टू सपोर्ट हिम। वो स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे, वो कर्फ्यू नहीं ला रहे। he is trying to be gentle and trying to provide all the reliefs measures by way of this, जो हमने अभी सेमिनार में सारे के सारे डिस्कस किए रिलीफ्स। तो गवर्नमेंट सॉफ्ट हार्टेडली प्रोवाइड कर रही है सारे बेनिफिट्स, ताकि आपको एट द एंड, एट द यूजर लेवल या तो एज एन इंडिविजुअल सिटीजन अफेक्ट ना हो। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी गवर्नमेंट वेरी प्रोएक्टिवली वर्किंग अमिड्स दिस पेंडेमिक। उन्होंने वेरियस बजट भी अलोकेट किए अंदर अंडर गरीब कल्याण योजना, वेरियस स्टेट्स को उन्होंने कंबाइन किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो ये रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंप्लायंसेस के लिए, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में। तो इन दी सिमिलर फैशन एक स्मॉल बट विच में हेल्प द स्मॉल पीपल इन दी lower middle class of our economy to refund of the tax amount up to 5 lakh rupees. तो IT डिपार्टमेंट टू रिलीज, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, इट्स अ वेरी वेलकम चेंज अपडेट जो है, दैट इज IT डिपार्टमेंट टू रिलीज ऑल द पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड्स up to rupees 5 lakhs immediately. All the GST and custom refunds also to be released. So press release dated, this has been notified by press release dated April 8, 2020. तो मेरा ये कहना है कि जो भी चेंजेस है गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किए अभी, जो हमने कवर किए चारों, which is with regard to the direct tax, which is with regard to indirect tax, it may be financial relief और corporate relief, और उसके अलावा हमने 100% वाले भी कवर किए। तो I hope this summarized webinar briefing about the relaxation would be helpful to you in ensuring that compliances are met with the revised boundaries which are being provided. Please ensure that, please listen to my request, please ensure that all the measures which we have discussed are provided with a motive that everyone stays safe and stay at their home. So my urge and plea to you is, please stay at home, stay safe and stay updated. Thank you so much. Vedant bhai, one more request. A few Yes, people yes, yes. joined little late, Okay. so they missed your first initially direct tax and indirect tax. So can you please cover that for the, I mean, benefit of the late joiners in within 15-20 minutes if possible? Please repeat. Okay, so what I'll try to do is, I'll not go into detail. I'll try to just cover up that what briefly we have discussed under these 2 points. Shall that be fine? What? Please repeat. What I'll try to do is, in 5 to 7 minutes, I'll try to cover broadly the direct tax and indirect tax changes which has been proposed. I'll not go into detail circular sheet. Sure. Correct. Yeah, yeah, please, whatever it is. And we will share the PPT on WhatsApp group. Sure. So all are requested to join the WhatsApp group also. We will add Vedant bhai also. So any query can be solved there also. For all I'm the extremely participants. sorry because the 1.5 hour has been consumed in the covering the total topic, so I'm unable to answer the questions which might be there in your mind. But as a great initiative, Virag bhai is creating a WhatsApp group. I'll be happy to join in that group and will be delighted to share and address all your concerns. So starting with this again, I'll not go into detail, but for all those who has missed, I'll just in a summarized way try to map up what are the changes that are being proposed under direct and indirect taxes. So in direct tax, we have covered 3 changes, which is one with regard to the due dates relaxation जो provide किया गया, availing of deductions and other relaxations. तो ड्यू डेट जो थे ITR के रिलेटेड, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रिबेट थी, बिलेटेड रिटर्न जो फाइल करना है फॉर असेसमेंट ईयर 1920, वो अब एक्सटेंड हो गया अप टू 30th June 2020।
जो नॉर्मल टर्म्स में रहता 31st of March 2020 which has now been extended to 30th June 2020. However, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि दो सबमिशन डिले हुआ है बट उसकी वजह से जो लेट फी अंडर 234F जो है फॉर फाइलिंग ऑफ लेट फी, दूसरा है 234A जो इंटरेस्ट होगा ऑन फाइलिंग ऑफ लेट फी एट द रेट ऑफ 1%, और 234B जो इंटरेस्ट होगा फेलर टू पे एडवांस टैक्स 90% उसके ऊपर 1%, वो तो एज इट इज लेवी होगा ही। सेकेंडली, ड्यू डेट एक्सटेंशन कुछ चीजों में अप टू 30th जून की गई, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि आधार और पैन का लिंकेज इज एक्सटेंडेड अप टू 30th of June। सेकेंडली, विवाद से विश्वास स्कीम जैसे कि हम सब जानते हैं, तो उसमें द पेमेंट एंड डिक्लेरेशन अंडर विवाद से विश्वास स्कीम कैन बी मेड एट नो एडिशनल 10% अमाउंट which otherwise was also required to be paid if disputed tax was raised after 30th of March 2020। तीसरा जो है कि with regard to passing of order and notices, तो extension दिया गया है with regard to passing of the orders and the issuance of notices by the authorities under the Income Tax and the Benami Transaction Act, which is also forming part under this act, correct? Moving ahead, which is with regard to due date of payment of income tax। अगर आपका इनकम टैक्स या तो फिर एसटीटी या तो फिर सीटीटी या तो इक्विलाइजेशन लेवी जो फॉल होता है बिटवीन 20th of March to 30th of June, वो आप पे कर सकते हो अप टू 30th of June 2020। General question which is being asked by many of our clients and colleagues is with regard to the deposition of TDS। तो फ्रेंड्स, इट इज इन दी सिमिलर फैशन, जो 31st मार्च की डेडलाइन है विच इज फाइलिंग ऑफ टीडीएस बाय 30th अप्रैल, देयर इज नो चेंज। बट एज फार एज टीसीएस इज कंसर्न उसमें भी चेंज नहीं है, बट वहां पे कंफ्यूजन होता है कि वो भी 30 अप्रैल है, जी ना, वो है 7th of April इटसेल्फ। सेकेंड है रिलैक्सेशन फॉर अवेलिंग दी डिडक्शंस, जहां पे आप देखेंगे कैपिटल गेन में हम ईयर एंड में देखते हैं, तो वहां पे दिया गया है कि अगर आपको बेनिफिट लेना है अंडर 54 to 54 जीबी की सीरीज में टू सेव योर कैपिटल गेन, तो वहां पे आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे या तो फिर कंस्ट्रक्शन करोगे या तो फिर तीसरा ऑप्शन परचेस करना चाहते हो, तो उसका जो डेडलाइन आपका फॉल होता है अगर 31st of March 2020 तक, तो वो अब एक्सटेंड किया गया है 30th June 2020। तो फ्रेंड्स, आपके पास 3 महीने का और रिलीफ है टू क्लेम दिस कैपिटल गेन टैक्स डिडक्शन। रिलैक्सेशन टू एसईजेड भी प्रोवाइड किया गया है। एसईजेड में ये कहा गया है कि जिनको अप्रूवल मिल गया था बाय 31st March 2020, उनको डेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करना था या डिडक्शंस क्लेम करने थे अंडर सेक्शन 10AA, वो भी एक्सटेंड किया गया है अप टू 30th of June 2020। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर डायरेक्ट टैक्स वो है विथ रिगार्ड टू एटीजी, जहां पे हमारी गवर्नमेंट ने पीएम केयर्स फंड क्रिएट किया है with an intention to serve and cater the needs of the country in this epic scenario of pandemic which is COVID-19। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो अंडर दिस पीएम केयर्स फंड अप टू 30th of June 2020, तो आपका जितना भी पेमेंट है वो 100% अलाउेबल होगा अंडर एटीजी, प्रोवाइडेड विथ अ कंडीशन दैट इट शुड बी विद इन 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। सो इससे बेनिफिट क्या होगा? दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ फंड पूल फॉर द गवर्नमेंट टू यूटिलाइज द फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट लार्ज। तीसरा और आखिरी डायरेक्ट टैक्स में जो रिलैक्सेशन है वो है विथ रिगार्ड टू द इंटरेस्ट रेट पेनल्टी प्रोसिक्यूशन। उसमें गवर्नमेंट ने, जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि अगर आपका टैक्स बाकी है भरना, तो यू कैन पे डायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स, एसटीटी, सीटीटी, इक्विलाइजेशन लेवी जो फॉल होता है 20th मार्च टू 30th जून के बीच में, वो आप पे कर सकते हो अप टू 30th जून। बट पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा? 9%, विच इज अ रिलीफ। जो नॉर्मल केस में 18% होता है वो अब 9% हो गया। फर्दर लेट पेमेंट फीस की जब मैं बात करूं और पेनल्टी की बात करता हूं, दैट हैज बीन कंप्लीटली वेव्ड। अब लोअर डिडक्शन की मैं बात करूं, असेसीज जिनके पास ऑप्शन रहता है टू फाइल नील और लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, उसमें दो केसेस हैं। मैं ऐसा असेसी हूं कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, और दूसरा मैं वो असेसी हूं जिनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है लोअर और नील डिडक्शन का, तो दैट इज अवेलेबल टिल 30th June 2020 और वो एक्सपायर नहीं होगा 31st of March को।
सेकेंड, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं वो ले सकता हूं अप टू द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 30th of June 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, विच इज विद रिगार्ड टू फॉर्म 15G एंड H। 15G इज अ फॉर्म फॉर सीनियर सिटीजन हुज एज इज बियॉन्ड 60 years, और H बाकी सारे के लिए, जिसकी वैलिडिटी 1 फाइनेंशियल रहती है। ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को ये फॉर्म 15G सबमिट करना है बैंक्स में जहां पे उनका TDS डिडक्ट ना हो। तो उस केस में समराइज करते हुए ऐसा कह सकते हैं कि फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1st of April to 30th of June 2020, फॉर्म 15G एंड H जो सबमिट किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 विल बी अ वैलिड प्रूफ फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ TDS। तो मतलब आपने सर्टिफिकेट दे दिया बैंक में, प्रीवियस ईयर दिया था, पर अब पेंडेमिक के कारण मैं सबमिट नहीं कर पा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप टू 30th जून आपका वो सर्टिफिकेट वैलिडेट गिना जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में हमने दो एरियाज कवर किए, which is first with regard to export related reliefs and second with related to relaxation in due dates। export related reliefs में for the major कंपनीज, जैसे मैंने बताया कि कोविड पेंडेमिक है, उसकी ग्लोबल इम्पैक्ट है, तो इट इज इम्पैक्टिंग ग्लोबल एट लार्ज। तो जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड ट्रांजेक्शंस में डील करते हैं या हु हैव एनी फॉरेक्स इफेक्ट, तो उन दैट केसेस इट बिकम्स वेरी क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट टू हेल्प दोज ट्रांजेक्शंस एंड बिजनेसेस। उस केसेस में गवर्नमेंट हैज केम अप विथ सर्कुलर। मैं जो एग्जिस्टिंग आई कैन सी अ गुड अमाउंट ऑफ अटेंडेंस इज आल्सो देयर। आपके लिए ये जिन्होंने मिस नहीं किया और आप रुके हैं उनके लिए एक ये ऐसा रहेगा कि आपको एक रिवीजन काइंड ऑफ हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा एक बार। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आई थैंक यू ऑल फॉर दैट। सो मूविंग अहेड, इसमें जो फैसिलिटेशन है वो दो पार्ट में मैंने डिवाइड की है सर्कुलर को। फर्स्ट जो FTP स्कीम है 2015 टू 20 जो DGFT ने इश्यू की है वो, और दूसरे जो अदर फैसिलिटेशन है। तो उसमें ब्रॉडली मैं आपको एक सर्कुलर दिखा देता हूँ, खाली ये जो प्रोवाइड किया गया है। I'll not go through the circular, आपको एक बार दिखा दूं दिस इज हाउ द सर्कुलर इज एंड व्हाट इट कवर्स, तो इट विल बी इजी फॉर यू। जो सर्कुलर यहाँ पे है, और मैं दूसरा भी इनडायरेक्ट टेक्स्ट में और दिखाऊंगा, इट इज अ वेरी सिंपली ड्राफ्टेड सर्कुलर, सो यू कैन रीड इट ऑन योर एंड। इफ यू एनी कंफ्यूजन प्लीज पिंग मी ऑन योर नंबर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने सर्कुलर इश्यू किया ऑन 11th of April 20 को, उसमें वेरियस फैसिलिटेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर FTP। जो FTP एक्सपायर होने वाली थी 31st March 20 को, इट हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 year टिल 31st March 2021। फिर एडवांस ऑथोराइजेशन का जो एरिया है, उसमें जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, इंपोर्ट ऑब्लिगेशन, ब्लॉक वाइज ऑब्लिगेशन, वो सारा जो था उसमें 6 months का एक्सटेंशन दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो प्लीज गो थ्रू दिस सर्कुलर। इसमें पॉइंट्स कौन से कवर किए गए वो मैं एक बार आपको नरेट कर देता हूं। दैट इज वन विथ रिगार्ड टू ऑब्लिगेशन एंड पीरियड अंडर एडवांस ऑथोराइजेशन एंड EPCG ऑथोराइजेशन, extension of validity of registration cum membership certificate beyond 31st March 2020, MEIS, SEIS, rebate, central tax levies, फिर हैंडबुक प्रोसीजर, ये सारे FTP के अंडर रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेजर सेक्टर्स है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेटेड इंडिया में, उनके लिए भी रिलीफ दी गई है। तो इफ यू आर फॉलोइंग अंडर द टोबैको बोर्ड या टी रिलेटेड बिजनेस या मरीन प्रोडक्ट्स या एग्री प्रोडक्ट्स, तो आपके लिए भी स्पेसिफिक बेनिफिट्स है। ECGC में भी बेनिफिट्स दिए गए हैं। इफ यू आर फॉलोइंग अंडर SEZ यूनिट्स, इफ यू आर एन SEZ यूनिट, आपके लिए भी बेनिफिशियल है। तो प्लीज गो थ्रू दैट सर्टिफिकेट, इट विल बी वेरी इजी। फिर रिलैक्सेशन इन ड्यू डेट्स, GST एक हॉट टॉपिक हमारे कंट्री में, उनके लिए जो रिटर्न फाइल करते हैं मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे, 2 बेसिक रिटर्न्स, one being GSTR 3B, other being GSTR 1। I have compiled it in a tabular form, जहां पे आप देख सकते हैं कि turnover wise and month wise relaxation has been provided, first table being GSTR 3B and second table for GSTR 1। GSTR 3B वाले टेबल में आप देखेंगे तो नीचे जो ग्रे ब्रैकेट में लाइन इंडिकेट की है वो मैंने जनरल केस लिए डेडलाइंस के लिए, एज वी ऑल आर अवेयर कि एज एन इंडिया लेवल एक्सक्यूज मी, considering the region and the turnover, the dates may vary but
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो रिलैक्सेशन डेट में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, that has to be followed across the nation, be it of different region or falling under different turnover as per the notification provided. मैंने यहाँ पे आगे आपको सर्कुलर के थ्रू भी बताया कि सर्कुलर जो आगे हम कवर करेंगे कि यहाँ पे जो टेबल 1 में GST 3B में इंटरेस्ट एट द रेट 9% दिया गया है इन केस ऑफ असेसीज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, करेक्ट। तो डेडलाइन यहाँ पे याद रखनी है आपको, जो ब्लैक कलर में डार्कली मार्क की गई है वो दैट इज अ रिलैक्सेशन नॉट डेफरमेंट, ये खास याद रखिए। गवर्नमेंट ने ड्यू डेट्स तो वही रखी है, उसमें रिलैक्सेशन दिया है आपको, कंप्लायंस की डेट डेफर नहीं की है। कंपोजिशन स्कीम के लिए भी था कि ड्यू डेट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम जो आपको मार्च तक करना था, अब आप 30 जून 2020 तक कर सकते हो। और उसमें आपको जो पेमेंट करना है उसकी जो डेडलाइन 18 अप्रैल थी वो एक्सटेंड करके अब 7 जुलाई तक कर दी गई है। और उसमें जो आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो 1920 का GSTR 4 में एनुअल रिटर्न या फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो एक्सटेंड हो गया है फ्रॉम 30 अप्रैल टू 15 जुलाई। डायरेक्ट टैक्स में जैसे जो स्कीम थी वैसे ही सिमिलर फैशन में यहाँ पे सबका विश्वास स्कीम है। वहां पे जिन लोगों ने वो स्कीम के लिए अप्लाई किया था और उनको जो टैक्स या ड्यूटी फॉल हो रही थी पे करने के लिए बिटवीन 20th मार्च टू 29th जून कैन नाउ बी पेड अप टू 30th जून। ये जो अभी एग्जिस्टिंग वेबिनार यूजर्स है जिन्होंने ऑलरेडी लिख लिया है उनके लिए नहीं, बट जो जिन्होंने मिस किया था, माय रिक्वेस्ट काइंडली नोट दिस सर्कुलर नंबर which is 136/6/2020 GST dated 3rd April 2020। क्या कहता है ये सर्कुलर? ये सर्कुलर कहता है कि हमने 6 सर्कुलर इश्यू किए इन द इफेक्ट ऑफ कोविड-19, बट वो 6 सर्कुलर को एवरी इंडिविजुअल अपने तरीके से इंप्लीमेंट ना करे, उसकी वजह से हम आपके लिए FAQ फॉर्म में एक कंबाइंड सर्कुलर लेके आए हैं जिसमें हमारा विजन एक ही है कि यूनिफॉर्मली आप सब ये हमारे कंप्लायंसेस जो हमने नोटिफाई किए वो फॉलो करें। लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दैट ब्रीफली। दिस इज द सर्कुलर। यहाँ पे ये जो 6 नोटिफिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने इश्यू किया है, जहाँ पे 6 नोटिफिकेशंस लाइन बाय लाइन आए थे, विच इज नोटिफिकेशन नंबर 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35, करेक्ट। तो ये सारे नोटिफिकेशंस में जो जनरल क्वेश्चंस आते थे या गवर्नमेंट के इंटेंशन थे to ensure the uniformity in the implementation of the provisions of the law across the field formation, उन्होंने ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया है। तो माय अर्ज इज, अगर आप ये सर्कुलर के थ्रू गो थ्रू करते हो, व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग, बिकॉज यू बीइंग प्रोफेशनल और यू बीइंग एम्प्लॉय, आपको आपके एंड पे जब आप करने बैठोगे और अप्लाई करने जाओगे रिलैक्सेशंस, तो इट विल बी वेरी क्रिटिकल एंड कंफ्यूजिंग कि इसे एप्लीकेबल किया तो है बट हाउ टू अप्लाई इट। तो दिस FAQs विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पे इलस्ट्रेशन के थ्रू एग्जांपल्स भी दिए हैं, जहाँ पे हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि 9% है, वो कैसे कवर करेंगे वो मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ एक बार। कि आइए बात करते हैं ये इलस्ट्रेशन की। जैसे मैंने बताया था, ये इलस्ट्रेशन उन्हीं एसएससीज के लिए एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। क्योंकि मैं एसएससी हूं, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, तो मुझे इंटरेस्ट रेट लेवी एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर ने कहा कि the rate of interest has been notified as nil for first 15 days। माइंड वेल फ्रेंड्स, अब ये जो अब मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, जो भी एग्जिस्टिंग वेबिनार व्यूवर्स है ये ध्यान से सुनिए अगर पहले मिस किया हो तो अगर मैं इंटरेस्ट 5 करोड़ से ऊपर हूं एसएससी और मैं एलिजिबल होता हूं इस कैटेगरी में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन नोटिफाइड एज नील फॉर फर्स्ट 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 9% पर एनम देयर आफ्टर फॉर द सेड मंथ्स। ये दो लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहला 15 दिन के लिए नो इंटरेस्ट रेट, सेकेंडली इंटरेस्ट रेट देन 9%, वो भी तब कि जब 15 दिन खत्म हो गए हो आपके, करेक्ट। तो लेट्स टेक इट थ्रू एग्जांपल।
तो मैं हूँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो है मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जहां पे मेरी ड्यू डेट थी 20th ऑफ अप्रैल। सबसे पहला इलस्ट्रेशन मैंने फाइल किया 2nd ऑफ मई को। कौन से मंथ का? मार्च मंथ का। नंबर ऑफ डेज डिले 11 डेज। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? तो 20th ड्यू डेट थी, 2/5 को भरा, डिफरेंस इज 11 डेज। तो वेदर द कंडीशन फॉर रिड्यूस इंटरेस्ट इज फुलफिल्ड, आंसर इज यस। ये कंडीशन क्या है? वो 15 दिन वाली, जिसमें 9% एप्लीकेबल है, पर तब कि जब हमारा उसमें जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफर किया है तब तक अगर हम फाइल करें तो। आइए जानते हैं। तो ये तो नॉर्मल केस हो गया कि मैंने 2/5 को भरा, 11 दिन तक का डिले था, मैं कंडीशन फुलफिल किया, क्या इंटरेस्ट लगेगा? आंसर इज नो। मूविंग अहेड टू सेकेंड, जहां पे 20 तारीख है, जहां पे नंबर ऑफ डिले है 30 दिन, क्या मैं कंडीशन में फुलफिल होता हूं अभी भी? आंसर इज यस। बट एज आई हैव एक्सीडेड 15 नंबर ऑफ डेज, तो पहले 15 दिन के लिए इंटरेस्ट नहीं है, बाकी के 15 दिन के लिए 9% इंटरेस्ट मुझे देना है फॉर 15 डेज। फिर 20/6 को मैंने भरा, ओ माय गॉड, डिले इज फॉर 61 डेज। क्या कंडीशन में अभी भी फुलफिल हो रहा हूँ? यस, आई एम फुलफिलिंग। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नॉर्मल टर्म 61 माइनस 15, तो कितना हो गया? 46 डेज। तो वो मुझे भरना पड़ेगा। सिमिलर केस में ये माइक्रो लेवल पे क्यों ले रहा हूँ, आपको भी समझ आएगा आने वाले 2 एग्जांपल्स में। फर्दर 24 को भरा तो 65 डेज, तो 15-50 का बाइफर्केशन हो गया, 50 के लिए आप 9% पे भर दीजिए। लास्ट जहां पे मैंने 30/6 को भरा, जहां पे मेरे नंबर ऑफ डेज डिफर्ड हो गए 71 डेज से, क्या मैं मेरी कंडीशन जो है इंटरेस्ट रिड्यूस वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं? तो आंसर इज नो। तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट भरना होगा एट द रेट ऑफ 18%। क्यों? क्योंकि मेरे वो पीरियड जो 9% की इम्यूनिटी पीरियड दिया गया था उससे मैं बाहर आ गया हूँ। तो इट बिकम्स अ नॉर्मल केस। नॉर्मल केस मतलब नॉर्मल टर्म्स में जब मैंने भरा होता और डिले हुआ होता, आई एम फॉलोइंग अंडर सेम पैटर्न। तो मेरा इंटरेस्ट रेट होगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर 75 डेज, एंड नो बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड interest liability will be there. Virag bhai, I suppose I have covered. So this was the areas which I have covered in direct and indirect taxes portion. Yes, we have organized a poll, and we received wonderful feedback from the participants. Around 90% participant has voted as extremely satisfied. So with this, I mean, it's showing all the Thanksgiving basically on for your knowledge sharing exercise. So with this, we are ending this webinar. Thank you so much all. Kindly be part of the WhatsApp group. We can have a material sharing there and also query solving if anybody has. So kindly join the WhatsApp group. We have many more webinar coming in the coming days in this lockdown period. Kindly utilize this period for improving your skill and join the webinar. Thank you so much all. Thank you Vedant bhai once again. Thank you Virag for giving the opportunity. Thank you so much. We'll be happy to join the WhatsApp group and answering the questions of our audience. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you.